We will shift to market now. Now you know the base at least. You know your cost function, you know your revenue function. Cost function does not change according to the type of the firm. ये पहले समझ लेना. Cost function does not change according to type of the firm. Revenue function changes as per type of the firm. समझ में आ रहा है? So average revenue curve and marginal revenue curve will change as type of the firm changes, but cost functions always remains same. Clear है? So now before I start market, पहले प्राइस कैसे डिटरमाइन की जाती है ये मुझे बोलना. कैसे प्राइस डिटरमाइन करते हो? कोई भी लेट इट बी आउटपुट, कोई भी हो, मे बी इक्विलिब्रियम आउटपुट हो या ना हो. इक्विलिब्रियम आउटपुट मतलब वो प्रॉफिट मैक्सिमम हो या नहीं हो, वो अलग बात है. आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली प्राइस कैसे डिसाइड करते हो. प्राइस इज डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. बराबर. सो डिमांड एंड सप्लाई जहां पे मीट करेगी वहां पे क्या करोगे आप? बोलोगे दैट इज माई प्राइस. सो नाउ take an example, right? This is my price. Price is ₹1, quantity demanded and quantity supplied. Price 2, 3, 4, 5. I will describe all those things in short. You know all these things, just मुझे एक बार रिवाइज करना है. Suppose if price is less, demand will be more. Suppose यहाँ पे you are demanding, take an example, suppose 50 units. ठीक है? As price increases, demand decreases to 40, 30, 20 and 10. So price and demand are inversely related to each other. बराबर? Other factors remains constant. Law of demand. Now, but if price is less, supply will be less. Price is more, supply will be more. So suppose ये 10 है, ये 15 है, sorry ये 20, 30, 40, 50. As price increases, quantity supplied increases. आपको मुझे यहां पे बोलना है, right? What is excess? If price is more, or suppose price is less, quantity demand is 50, however quantity supplied is only 10. So यहां पे excess क्या है? Demand. बराबर? Excess is demand. So अगर demand excess है, there are more people who are demanding. So price, pressure on price. Price increase होगी या decrease होगी? Pressure on price. देखो ना, इनिशियली प्राइस 1 है, ₹1 पर यूनिट है, 50 डिमांडेड, सप्लाई खाली कितना है? 10. सो नाउ प्रेशर इज ऑन प्राइस, सॉरी प्रेशर इज ऑन डिमांड बेसिकली. सो दे विल डिमांड नाउ हायर प्राइस, सो प्राइस विल इंक्रीज. नाउ प्राइस इज इंक्रीज टू 2, डिमांड डिक्रीज टू 40, suppliers increase their supply to 20 units. Again यहाँ पे excess क्या है? Still demand is more than supply. So demand side पे pressure है, price will again increase. Price increase to 3, demand became equal to supply. बराबर. यहाँ पे क्या कुछ excess है क्या? नहीं, actually quantity demand is equal to quantity supplied. There is no pressure on the price. This price is called as equilibrium price and this quantity is called as what? Equilibrium quantity, demanded and supplied. Clear? But if price is ₹4, quantity demanded is 20, supplied is 40. So supply is more than demand. So excess क्या है? Supply. Excess क्या है? Supply. अगर supply excess है, competition suppliers में, समझ में आ रहा है? To supply more and more. In order to supply more, they will decrease the price. So pressure on the price क्या रहेगा? Decrease. Price 4 to कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी. अगर वही price 5 है, only 10 is demanded and supply is of 50 units. So excess क्या है? Supply. Competition किस में? Suppliers में. In order to sell more, they have to decrease the price. समझ में आ रहा है? If I draw the graph, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा. This is my price axis, this is my quantity demanded and quantity supplied axis. This is my equilibrium price. आप इसको बोलते हो E. This point is called as E.
बराबर, इक्विलिब्रियम, जहां पे डिमांड कर्व DD एंड सप्लाई कर्व SS इंटरसेक्ट्स, बराबर. दिस प्राइस इज OP एंड क्वांटिटी इज OQ, बराबर. ये जो लेवल है, ये जो है, दिस इज एक्सेस सप्लाई. देखो प्राइस ज्यादा है, अगर प्राइस ज्यादा है तो सप्लाई क्या था, एक्सेस था. सो ये जो एरिया है, दिस इज एक्सेस सप्लाई. जब प्राइस कम थी तो डिमांड क्या थी, एक्सेस. तो ये जो एरिया है, दिस शोज एक्सेस डिमांड. दिस इज एक्सेस डिमांड. एक ही ऐसे पोजीशन है जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, वो पॉइंट है E. जस्ट दैट यू नो, आपने वो 12th में भी बहुत बार लिखा होगा. दिस इज द प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, बराबर. क्लियर है. अब इसको मुझे थोड़ा आगे लेके जाना है. देखो मैं क्या बोल रहा हूं. सो जब कभी भी आपको इक्विलिब्रियम डिसाइड करना है, व्हाट इज माय प्राइस इन द मार्केट, अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज द प्राइस इन द मार्केट, तो यू शुड कंपेयर टू कर्व्स, डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, और जहां पे इंटरसेक्ट होंगे वहां पे आपकी प्राइस होगी, बराबर. नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, इवन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मूवमेंट ऑन द कर्व, मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व, ऑन कर्व, एंड दूसरा होता है शिफ्ट इन द कर्व. शिफ्ट इन द कर्व, मूवमेंट ऑन द कर्व एंड शिफ्ट इन द कर्व. मूवमेंट ऑन द कर्व को हम बोलते हैं वेरिएशन. अगर आप डिमांड कर्व के बारे में बोलते हो तो आप बोलते हो वेरिएशन इन डिमांड. अगर आप सप्लाई कर्व के बारे में बोलते हो आप बोलते हो वेरिएशन इन सप्लाई. सो वेरिएशन. एंड शिफ्ट इन द कर्व को आपको बोलते हो चेंज, चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई. इसमें कांस्टेंट क्या होता है एंड वेरिएबल क्या होता है. मूवमेंट ऑन द वेरिएबल एंड कांस्टेंट. देखो मैं क्या बोल रहा हूं. यस, सो वी से डिमांड डिपेंड्स ऑन वेरिएबल लाइक अदर actually determinants of demand, price of the commodity, price of the complementary goods, price of the substitutes, fashion, age structure, climate, taxation policy, overall population, regular advertisement, distribution of income, individual's income, expectations, future, interest rates वगैरह, ये सब चीजें, all these things changes the demand. However, whenever we say only price of the commodity will change and other factors remain constant, जो है law of demand. So variable रहेगा price of commodity, price of commodity, other factors remain constant. बाकी सब price of complementary goods, substitutes सब constant, income, technology etc. all remains constant. And इसमें shift में क्या होता है, we assume other factors will change, income change, fashion change, government policy change, technology change. So other factors do change, however price remains same. I am talking about यहाँ पे law of demand और supply. As the case में भी आप कौन से क्या ले रहे हो, law of demand और supply. This is not law because law में हम खाली price change करते हैं, बाकी ceteris paribus रहेगा, बराबर. Not law. I am not talking about law. क्लियर है. अगर कोई मुझे इसको और खींच के बोलेगा, इसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी. बिकॉज प्राइस इलास्टिसिटी में व्हाट इज द चेंज ऑफ द प्राइस, व्हाट इज द हाउ द क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस. डिमांडेड के बारे में बात करें तो डिमांड इलास्टिसिटी एंड सप्लाई के बारे में बात करें तो सप्लाई इलास्टिसिटी. तो यह है प्राइस इलास्टिसिटी. एंड इसमें आता है एक क्रॉस इलास्टिसिटी, इसमें आता है क्रॉस इलास्टिसिटी. इफ सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस चेंज होगी तो हमारे क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या असर आएगा. और एक और होती है इनकम इलास्टिसिटी, बराबर. अगर इनकम चेंज होगा तो डिमांड या सप्लाई पे क्या असर होगा, ये कौन बोलता है, इनकम इलास्टिसिटी. और एक होती है एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी. ये आपके सिलेबस में नहीं है, दे हैव इंट्रोड्यूस दिस इन फाउंडेशन, बट एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी भी है. अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर चेंज होगा तो डिमांड पे क्या चेंज होगा, सप्लाई पे क्या चेंज होगा. अगर वो स्टडी कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइस रिमेन सेम बट सपोज
prices of other good changes, what change in the demand and supply, cross elasticity. what income change होती है, क्या change होगा, income elasticity. advertisement expenditure change होगा तो क्या, advertisement. समझ में आ रहा है, ये elasticity के terms में मैं बोल रहा हूं. आगे, so now this is my demand, this is my demand, quantity demanded, and this is my price. This is my original demand curve. This is my original demand curve, बराबर. This is my price, OP is the price, original price, OQ is the quantity demanded, original quantity demanded. Other factors remains constant, price increases. अगर price increase होगी, suppose price becomes OP1, my quantity demanded will decrease to OQ1. You are moving, this is original point A, you are moving to the point B, आप upward जा रहे हो, समझ में आ रहा है, you are moving upward, movement, quantity demanded क्या हो रही है, decrease हो रही है. आप इसको क्या बोलते हो, आप इसको बोलते हो decrease in quantity demanded. इसको क्या बोलते हो, decrease, wording is very important, इसको आप बोलते हो quantity demanded बोलते हो. So this is decrease in क्वांटिटी डिमांडेड. डिक्रीज इन डिमांड नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. अगर सेम कर्व पे चेंज हो रहा है ना तो उसको क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड बोला जाएगा. इफ प्राइस डिक्रीजेस टू OP2, माई क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज टू OQ2. I will shift from the point A, I will move basically, I will move from the point A to point C on the same demand curve. इसको हम बोलते हैं increase in quantity demanded. In quantity demanded. So अगर आप upward shift होते हो to the left on the same demand curve, उसको आप बोलते हो decrease in quantity demanded. And अगर आप downward shift होते हो to the right on the same demand curve, आप उसको क्या बोलते हो, increasing quantity demanded. ये movement क्यों होता है, because price change होती है, other factors remains same. But is it always necessary कि खाली एक बार प्राइस चेंज होगी बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे और एक बार बाकी चेंज होगा प्राइस कांस्टेंट रहेगी? नहीं. जब हम मार्केट डिसाइड करेंगे, प्राइस डिसाइड करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, वो मुझे समझाना है. अगर कुछ भी होगा तो प्राइस पे क्या इंपैक्ट होगा, आउटपुट पे क्या इंपैक्ट होगा, ये हमें केसेस स्टडी करने हैं. वो जो मार्केट का सेकंड यूनिट है वो इसके बारे में बात करता है. So, अब what is the shift in the demand curve? Check करो. This is my price axis. This is my quantity axis. Quantity demanded. This is my price. This is my demand curve, original demand curve DD. This is my original demand curve DD. अब मैं प्राइस कांस्टेंट रखने वाला हूं. आई एम नॉट गोना चेंज माई प्राइस. यहां पे मैं प्राइस चेंज कर रहा था, इंक्रीज और डिक्रीज. Here I have assumed my price will remain same, but other factors change हो रहे. Other factors में favorable changes होंगे या unfavorable changes होंगे. Suppose demand में favorable changes क्या हो सकते हैं? Example, price of the substitute decrease is favorable for me. मेरी competitor price of the substitute increase. बराबर, competitor की price increase हो रही है, मेरे लिए अच्छा है ना, right? Substitution effect से उसके भी कस्टमर मेरे पास आएंगे, मेरे तो मेरे पास ही रहेंगे. और प्राइस ऑफ द सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड डिक्रीज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, प्रेफरेंसेस टुवर्ड्स माय कमोडिटी इंक्रीज, गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स माय कमोडिटी इज फेवरेबल. समझ में आ रहा है? सो ये सब फैशन वगैरह मेरे फेवर में चेंज हो रहे हैं, प्राइस सेम है, प्राइस नहीं चेंज हो रही है, फिर भी फेवरेबल चेंजेस के वजह से, बाकी चीजों में फेवरेबल चेंजेस के वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड या मेरी देखो फेवरेबल चेंजेस से प्राइस पहले कितना आउट डिमांड था, OQ, प्राइस वाज OP, डिमांड वाज OQ, क्वांटिटी डिमांडेड वाज OQ. अगर आज आप देख रहे हो सर प्राइस तो सेम ही है बट क्वांटिटी डिमांडेड OQ1 हो रही है, मैं बोल रहा हूं अरे क्वांटिटी डिमांडेड क्यों इंक्रीज हो रही है, प्राइस तो सेम है. आप बोल रहे हो सर बाकी फैक्टर्स फेवरेबल हो रहे हैं. सो यू आर मूविंग, यू कैन सी राइट, यू आर शिफ्टेड द डिमांड कर्व. आप डिमांड कर्व क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो. सो यू आर शिफ्टेड टू द राइट. जब आप आपके राइट पे शिफ्ट करते हो डिमांड कर्व पे, आप इसको बोलते हो इंक्रीज इन डिमांड. डोंट से क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज इंक्रीज इन डिमांड.
ओरिजिनल डिमांड करके राइट में शिफ्ट हो रहे हो और आउटवर्ड शिफ्ट हो रहे हो, नॉट टुवर्ड्स ओरिजिन बट अवे फ्रॉम ओरिजिन। ये क्यों हो रहा है? इसके रीजंस, 1, इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, डिक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फेवरेबल फैशन, फेवरेबल एज स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है, फेवरेबल क्लाइमेट, फेवरेबल टैक्सेशन पॉलिसी, ओवरऑल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, हमारे एडवर्टाइजमेंट अच्छे इफेक्ट्स दिखा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमारे फेवर में, इनकम्स इंडिविजुअल की इंक्रीज हो रही है, लाइक दैट। एंड कस्टमर्स एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी, इसलिए वो आज डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं। हमारी प्राइस उतनी है बट कस्टमर्स को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगी, इसलिए वो आज क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं। अगर ये सब चेंजेस होंगे, प्राइस रिमेन सेम, आई विल शिफ्ट द डिमांड कर, मेरी डिमांड कर क्या होगी? शिफ्ट होगी टुवर्ड्स राइट। अगर अपोजिट होगा, जो भी मैंने बोला, अनफेवरेबल चेंजेस, प्राइस तो उतनी है बट unfavorable changes, now my quantity demanded will decrease to suppose OQ2. Now price is the same but quantity demanded change हो रही है। Now this is my new demand curve. So ये suppose मेरी D1 थी, ये मेरी D2 है। If you shift to the left of your original demand curve towards origin, आप लेफ्ट में शिफ्ट हो रहे हो, आप इसको क्या बोलोगे? इसको आप बोलते हो डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। ऑन सिमिलर बेसिस सप्लाई कर्व भी बन सकती है। सप्लाई कर्व में, ये आपकी सप्लाई कर्व है, दिस इज योर सप्लाई कर्व। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, वी हैव टू डिस्कस दोस क्वेश्चंस। दिस इज योर सप्लाई कर्व, सपोज मैंने ऐसे लिए समझने के लिए, दिस इज माई ओरिजिनल सप्लाई कर्व, माई ओरिजिनल प्राइस इज ओपी, ठीक है, माई ओरिजिनल प्राइस इज ओपी, प्लीज, ओरिजिनल प्राइस इज ओपी एंड ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड इज ओक्यू। इफ प्राइस ऑफ माई कमोडिटी इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑब्वियसली, इन ऑर्डर टू earn more and more, I will supply more and more. I am moving upward. यहां पे उल्टा है, देखो, अगर आप अपवर्ड मूव करते हो डिमांड कर्व पे, आप उसको बोलते हो डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बट अगर सप्लाई कर्व पे अपवर्ड मूव करते हो तो आप इसको क्या बोलते हो? इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड। क्लियर है? क्वांटिटी इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा। आगे अगर प्राइस डिक्रीज होती है आपकी कमोडिटी की, यू विल सेल लेस, यू विल सेल लेस, यू विल सप्लाई लेस। सो दिस इज सपोज P1, नाउ दिस इज P2 इज द लोअर प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीजेस टू OQ2, यू आर मूविंग राइट डाउनवर्ड ऑन द सेम सप्लाई कर्व। आप इसको क्या बोलते हो? डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इन क्वांटिटी सप्लाइड। क्लियर है? एग्जैक्टली उल्टा है। देखो, अगर आप डिमांड कर्व पे डाउनवर्ड मूव करते हो, आप बोलते हो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर वही सप्लाई कर्व पे डाउनवर्ड मूव करोगे, आप उसको क्या बोलोगे? डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। क्लियर है? एंड अगर वही यहां पे चेंजेस देखो, दिस वॉज माई ओरिजिनल सप्लाई कर्व, राइट? सप्लाई डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, वन इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो पहले देखा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी। If like improved technology, supply will be more, not like old technology, supply will be less. Cost of production, if cost of production is more, supply is less. If it is cost of production is less, supply will be more. समझ में आ रहा है? It also depends on the income of the individuals, like that. So there are various factors on which supply depends other than price. Price will remain same, price नहीं change होगी. There are favorable changes in my देखो, प्राइस इज ओपी, क्वांटिटी सप्लाइड इज OQ. देयर आर फेवरेबल चेंजेस इन फैक्टर्स, राइट? सप्लाई ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है OQ1. नाउ यू आर शिफ्टेड योर सप्लाई कर्व. दिस इज ओरिजिनल सप्लाई कर्व SS, दिस इज न्यू सप्लाई कर्व S1. आप कहां पे शिफ्ट हो रहे हो? टूवर्ड्स राइट. इफ
डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व में एक यहां पे कॉमन चीज है, अगर डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होती है, शिफ्ट बोल रहा हूं, आप उसको बोलते हो इंक्रीज इन डिमांड, सप्लाई कर्व अगर राइट पे शिफ्ट होगी तो आप उसको क्या बोलोगे, इंक्रीज इन सप्लाई। अगर वही अनफेवरेबल चेंजेस होंगे तो क्वांटिटी सप्लाई के सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज। सो इफ यू मूव टूवर्ड्स योर लेफ्ट, ओरिजिनल सप्लाई करके लेफ्ट पे मूव होते हो, आप उसको क्या बोलते हो, डिक्रीज इन सप्लाई। ये दोनों में एक चीज कॉमन है। इंक्रीज इन डिमांड मतलब राइट पे जाओ, डिक्रीज इन डिमांड मतलब लेफ्ट पे जाओ। इंक्रीज इन सप्लाई राइट पे जाओ, डिक्रीज इन सप्लाई लेफ्ट। मैं सप्लाई या डिमांड बोल रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई मतलब सप्लाई कर या डिमांड कर नई नहीं बनती, वही कर रहती है। सो अब मुझे चेक करना है, ये कंसेप्ट है हमारी, मुझे इसको अलग अलग केसेस में कैसे प्राइस डिसाइड की जाएगी ये समझना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं खाली एक एग्जांपल दूंगा एंड फिर मैं डायरेक्टली लिख लूंगा क्या क्या केसेस हो सकते हैं। यू हैव टू लाइक घर पे भी जाके आप ट्राई कर सकते हो, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। मैं खाली आपको केसेस सिनेरियोस लिख लूंगा और क्या आंसर आएगा आई विल जस्ट एक्सप्लेन इन वन सेंटेंस, समझ में आ जाएगा। टेक एन एग्जांपल। मैं क्या लिख रहा हूं देख लेना। फर्स्ट सीरियल नंबर, दिस इज माय केस। चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड। सेकंड, चेंज इन सप्लाई। इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अभी तक तो हम देख रहे थे कि खाली प्राइस चेंज होने से, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होने से डिमांड एंड सप्लाई में, क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड में इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या बदलाव आ रहा था। नाउ प्राइस एक तो फैक्टर ही है, अगर बाकी भी चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या होगा। माय फर्स्ट केस, फर्स्ट इफ देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड बट सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, तो क्या होगा चेक करना। मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं, नो नीड टू राइट ड्रॉ द डायग्राम, खाली समझ लेना। दिस इज माय ओरिजिनल डिमांड कर्व एंड ओरिजिनल सप्लाई कर्व, बराबर। व्हाट इज माय इक्विलिब्रियम प्राइस, my equilibrium price is OP, my equilibrium quantity is OQ. Now you have to tell me what will be the impact. Check करो, मैंने क्या बोला है, if there is a change in the demand, change in the demand, quantity demanded नहीं बात कर रहा हूं, I am changing the demand means I am changing the curve, और increase हो रही है तो आप कहां पे ओरिजिनल डिमांड कर्व पे कहां पे आओगे, राइट पे आओगे। सप्लाई, सॉरी गलत किया मैंने, हाँ ओरिजिनल डिमांड करके कहां पे आओगे, राइट पे आओगे। दिस इज ओरिजिनल डिमांड कर DD, दिस इज ओरिजिनल सप्लाई कर SS। आई हैव इंक्रीज द डिमांड, सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। सो नाउ व्हाट इज माय न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। पहले ये पॉइंट था ना, अब ये पॉइंट आ गया। सो व्हाट इज माय इक्विलिब्रियम प्राइस इज इंक्रीज टू OP1 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज टू OQ1. So now if there is a change, increase in the demand, supply remains constant, what is the impact on equilibrium price? Equilibrium price increase होगी या decrease होगी, increase होगी। So equilibrium price will increase, equilibrium quantity will also increase। समझ में आ रहा है। So simple है, अगर demand increase हो रही है, competition is among the buyers, they are ready to pay higher price। अगर वो हायर प्राइस देंगे तो सप्लायर्स भी ज्यादा सप्लाई करेंगे, इसलिए ओरिजिनल प्राइस जो इक्विलिब्रियम थी दैट विल इंक्रीज, इवन क्वांटिटी सप्लाइड विल आल्सो इंक्रीज। सो क्वांटिटी, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मींस क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड बोथ विल इंक्रीज एंड दे विल मीट। समझ में आ रहा है। नाउ सेकंड केस, this was our original supply curve, right? This was our original supply curve. चेक करो, अब मैं सेकंड लिख रहा हूं यहां पे। इफ सेकंड, इफ चेंज इन द डिमांड इज डिक्रीज, सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा सोच सकते हो। डिमांड डिक्रीज हो रही है, सप्लाई कांस्टेंट है,
डिमांड डिक्रीज होगी, ऑब्वियसली प्राइस भी क्या होगी, डिक्रीज होगी. प्राइस डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली सप्लाई भी क्या होगा, डिक्रीज. मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज. बोथ शुड डिक्रीज. लेट्स प्रूव डिक्रीज इन डिमांड मींस आपको लेफ्ट में आना होगा ओरिजिनल डिमांड कर्व पे. नाउ दिस वाज योर ओरिजिनल सप्लाई कर्व चेंज नहीं हो रही, खाली डिमांड कर्व. सो दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम लेवल. पहले ये था, अब ये है. सो नाउ यू कैन सी प्राइस इज नाउ OP1 विच इज लेस and quantity demanded and supplied is OQ1 which is less. So now आप मुझे बोलो what is the impact on equilibrium price? It has decreased and equilibrium quantity is also decreased. Hopefully समझ में आ रहा होगा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रीजन बिकॉज मार्केट में हमें लॉन्ग टर्म में क्या होगा ये सोचते टाइम हमें उसका आंसर पता होना चाहिए. सो सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, मैंने यहां पे क्या चेंज किया, खाली डिमांड चेंज किया, सप्लाई रिमेन कांस्टेंट. एक बार डिमांड इंक्रीज की, एक बार डिमांड डिक्रीज की. थर्ड क्या क्या, डिमांड रिमेन सेम, सप्लाई इंक्रीज होगा. सप्लाई इंक्रीज होगा तो प्राइस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी. प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी ना. तो डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है, वैसे सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज. यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, यू कैन प्रूव इट. बट इसमें क्या करना होगा, सप्लाई कर को आपको कहां पे लेके जाना होगा, उसके राइट में लेके जाना होगा. डिमांड कर को हाथ लगाना है क्या, नहीं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. सप्लाई कर ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग, उसको राइट में डाल दो. नंबर 4 मैं बोल रहा हूं, डिमांड रिमेन सेम हाउएवर सप्लाई डिक्रीज. डिमांड उतनी है बट सप्लाई डिक्रीज होगा. लोग उतने ही डिमांड करने के लिए बट अवेलेबिलिटी कम है, प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी. अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है बट क्लियरली लिखा है सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, तो पहले से तो कम ही सप्लाई रहेगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम. क्लियर है. यू कैन ड्रॉ द ग्राफ. इसमें आपको डिमांड कर्व को हाथ नहीं लगाना है, सप्लाई कर्व को जो ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग है उसको लेफ्ट में डालना है. यू विल गेट द आंसर, डेफिनेटली विल गेट द आंसर. तो पहले 2 केसेस डिमांड चेंजेस, सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट. सेकंड 2 केसेस सप्लाई चेंजेस, डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट. बट रियल लाइफ में एक्चुअली बोथ चेंजेस, मे बी डिमांड चेंजेस एज वेल एज सप्लाई चेंजेस. तो फिर वो चेंज सेम डायरेक्शन में हो सकता है या अपोजिट डायरेक्शन में, तो और 4 केसेस बन जाएंगे. सो नंबर 5, डिमांड इंक्रीजेस, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस. नंबर 6, डिमांड डिक्रीजेस, सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेस, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. क्लियर है. नंबर 7, नंबर 8, demand increases however supply decreases or demand decreases however supply increases. I will directly write the answer. चेक करना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक से समझना. मैं बोल रहा हूं सर डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है. तो सर अब एक और क्वेश्चन हो है, सो दोनों इक्वल रेशियो से इंक्रीज हो रहे हैं या एक ज्यादा है और दूसरा कम है. तो इसमें भी 3 वैसे देखा जाए तो केसेस बन सकते हैं. एक, सर डिमांड इंक्रीज हुआ, सप्लाई भी इंक्रीज हुआ 10% से. सपोज सर डिमांड इंक्रीज हुआ 10 से, सप्लाई इंक्रीज हुआ 5 से, या सप्लाई इंक्रीज हुआ 5 से, डिमांड इंक्रीज हुआ 10. एग्जाम्पल. सो इन दैट केस राइट, एक सिंपल लॉजिक है वो समझना है. देखो मैं क्या बोल रहा हूं, वेन एवर देयर इज अ चेंजेस इन बोथ डिमांड एज वेल एज सप्लाई, साइमल्टेनियस चेंज है, चेंज इन डिमांड एज वेल एज चेंज इन सप्लाई. I am talking about the shift in the curves. समझ में आ रहा है. And that change in the same direction, अगर वो same direction में, in that case I cannot talk about the price. Price is uncertain. लिख लेना. प्राइस पे क्या चेंज होगा I cannot guarantee. प्राइस पहले से ज्यादा भी हो सकती है, प्राइस पहले से कम भी हो सकती है. Price can be uncertain, but I can always talk about equilibrium quantity. केस नंबर 5 देखना, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज. सेकंड केस में डिमांड डिक्रीज हो रही है, सप्लाई भी डिक्रीज हो रहा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज. सो मैंने एक सिंपल वर्ड में एक सेंटेंस में बोल दिया, व्हेनेवर देयर इज अ साइमल्टेनियस चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई एंड दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट अबाउट द चेंज इन द प्राइस. इट डिपेंड्स. प्रोपोर्शनेट चेंज क्या है उस पर डिपेंड हो सकता है.
समझ में आ रहा है? आई कैन नॉट प्रेडिक्ट अबाउट द प्राइस बट आई कैन प्रेडिक्ट अबाउट क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड. अब उसमें नंबर 7 एंड नंबर 8, डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, या डिमांड डिक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है. उसमें भी 3 केसेस बन सकते हैं, इक्वल और आगे पीछे. अब इस केसेस में आई विल से आई कैन नॉट प्रेडिक्ट द क्वांटिटी, अनसर्टेन, बट आई कैन प्रेडिक्ट अबाउट द प्राइस. डिमांड भी देखो, फर्स्ट केस में नंबर 7, both are simultaneously changing, demand is increasing, people are ready to pay more price, supply decrease हो रहा है, मतलब प्राइस क्या होनी चाहिए? लॉजिकली प्राइस शुड इंक्रीज. डिमांड डिक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, पहली लोग पे करने के लिए कम है और उसमें और ज्यादा मिल रहा है, प्राइस क्या होगी? डिक्रीज. सो if there is a simultaneous change in demand as well as supply and that change in the opposite direction, in that case I cannot predict quantity but I can predict price. समझ में आ रहा है? So this is 1, this is 2. ये जो है they talk about simultaneous changes. This is 1. So total मैंने 4 केसेस कर दिए. पहले केस में only demand changes, फर्स्ट 2 में supply remains constant, 3 and 4 में मैंने बोला supply changes, demand remains constant. मैंने फिर बोला कि इसमें खाली एक, दोनों में से एक चेंज हो रहा था. फिर मैंने बोला both changes in the same direction, changes in the opposite direction. क्लियर है? क्लियर है? सपोज कोई फर्म है जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमा रही है, कोई फर्म है जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमा रही है. शॉर्ट टर्म में क्या कर रहे हैं? वो प्रॉफिट कमा रहे हैं. सो जो नए लोग हैं वो देख रहे हैं यार ये लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, बराबर, तो दे विल एंटर इनटू मार्केट, वो भी उस बिजनेस में आ जाएंगे. अब इसमें जैसे वो मार्केट में आ जाएंगे, सप्लाई विल इंक्रीज. अगर सप्लाई इंक्रीज होगा, डिमांड तो नहीं चेंज, कंज्यूमर तो उतनी है ना, डिमांड चेंज नहीं होगा बट सप्लाई इंक्रीज होगा, तो प्राइस क्या हो जाएगी मार्केट में? डिक्रीज. कोई फर्म प्रॉफिट कमा रहे हैं मतलब उनका रेवेन्यू इज मोर देन देयर कॉस्ट. अगर कोई फर्म प्रॉफिट कमा रहे हैं शॉर्ट रन में मतलब उनका रेवेन्यू इज मोर देन देयर कॉस्ट. अब क्या हो रहा है? बाकी लोग भी देख रहे हैं कि यार ये लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो व्हाई शुड वी नॉट डू दिस बिजनेस? दे विल ऑल्सो एंटर इनटू मार्केट. सप्लाई विल इंक्रीज, बायर तो उतनी है, डिमांड रिमेन सेम, सप्लाई इंक्रीजेस. नाउ अब क्या होगा? देखो, प्राइस विल डिक्रीज एंड जैसे सप्लायर्स इंक्रीज होंगे दे विल डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेज रेट वगैरह, लेबर्स वगैरह, उनकी डिमांड इंक्रीज होगी, रॉ मटेरियल की डिमांड इंक्रीज होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज. देयर इज प्रॉफिट मतलब क्या? एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट. ये दोनों का डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट है. अब क्या हो रहा है? प्राइस डिक्रीज हो रही है एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड, बिकॉज उनको प्रोड्यूस तो करना होगा ना सप्लायर्स को. अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड इंक्रीज होगी तो उनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट इंक्रीज होगी एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग रन में प्रॉफिट क्या हो जाएगा? वाइप आउट हो जाएगा. इसलिए जो फर्म, मैं आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म, शॉर्ट रन में अगर वो प्रॉफिट कमा रहे तो, एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एनीवन कैन कम एंड एनीवन कैन एग्जिट. अगर ये प्रॉफिट कमा रहे हैं मतलब एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट, the other suppliers will enter into market, they will increase the supply, change in the supply, change in demand remains constant, supply increases, average revenue will come down. Average cost क्यों increase होगी? Because they will also need factors of production to produce the goods and services. वो क्या कर देंगे बोलो? They will also start demanding factors of production. उनकी डिमांड इंक्रीज होगी, factors of production constitute your cost. ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो गई. एवरेज कॉस्ट विल इंक्रीज एंड ये जो डिफरेंस था वो क्या हो गया? वाइप आउट हो गया. मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म शॉर्ट रन में अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं, लॉन्ग रन में मतलब पॉजिटिव प्रॉफिट कमा रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा रहे हैं, लॉन्ग रन में वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट हो जाएगा. वहां पे हमें यह समझ में आना चाहिए क्या होगा लॉन्ग रन में, क्या होगा? वही उल्टा, perfect competitive firm is incurring losses in the short run. अब क्या हो रहा है?
एवरेज रेवेन्यू इज मोर, सॉरी एवरेज कॉस्ट इज मोर, एवरेज रेवेन्यू इज लेस. अब ये लोग लॉसेस में नहीं तो कोई आएगा नहीं, बट एग्जिट तो इजीली हो सकता है. एग्जिस्टिंग फर्म्स विल लीव द मार्केट. डिमांड तो उतनी है बट सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज. यहां पे देखो डिमांड रिमेन सेम, सप्लाई डिक्रीज होगा तो प्राइस क्या होगी, इंक्रीज. एवरेज रेवेन्यू विल इंक्रीज बिकॉज सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, डिमांड रिमेन सेम. एंड अगर बहुत लोग प्रोडक्शन छोड़ना देंगे, एग्जिट करेंगे, तो राइट इवन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल डिक्रीज बिकॉज अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थोड़े चीप रेट पे अवेलेबल होना स्टार्ट होंगे. सो एवरेज कॉस्ट ऊपर है, एवरेज रेवेन्यू नीचे है. एवरेज रेवेन्यू प्राइस विल इंक्रीज एंड एवरेज कॉस्ट विल डिक्रीज. लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में प्रॉफिट क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा. तब मुझे ये कंसेप्ट चाहिए. जस्ट मैंने एक इलस्ट्रेशन दिया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. सो हम बोलते हैं शॉर्ट रन में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म अर्न्स एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन. पॉजिटिव प्रॉफिट, जीरो प्रॉफिट और नेगेटिव प्रॉफिट. बट इन लॉन्ग रन they will always and always earn normal profit because there will be shift in the curves. समझ में आ रहा है? Are you getting my point? Yes. तभी हमें चाहिए. क्लियर है? Now एक एग्जाम्पल है, ठीक से समझना है. इसका ही एग्जाम्पल है. लेट मी चेक. ऑल दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम मॉडल टेस्ट पेपर. ये देखा होगा कि कोई लोगों ने डायग्राम. अच्छा, जस्ट आई विल एक्सप्लेन यू and we will solve. There are total 16 to 17 different questions in various papers जो मैंने क्लब किए. So try to understand. They can ask because model test paper में they have given you following questions are based on the diagram of demand and supply. D1 मतलब ये वाली, D1 and S1 are the original demand and original supply. And ये जो intersect हो रहा है point 1 इज ओरिजिनल इक्विलिब्रियम. ये क्या है, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम. सो अब भी ओरिजिनल डिमांड कर्व इज D1 ये वाली, ओरिजिनल सप्लाई कर्व इज S1 एंड ओरिजिनल इक्विलिब्रियम इज 1. अगर कोई बोलता है सर डिमांड इंक्रीज होगी तो आप कहां पे शिफ्ट होंगे, D1 टू D2. अगर डिमांड डिक्रीज होगी आप कहां पे शिफ्ट होंगे, D1 टू D3. सप्लाई इंक्रीज होगा S1 टू S2 एंड अगर सप्लाई डिक्रीज होगा S1 टू S, और कुछ भी हो सकता है. सो अब देखो आगे नेक्स्ट. सो अभी आप कहां पे हो, पॉइंट 1 पे हो. क्लियर है? अभी आपकी डिमांड कर D1 है, अभी आपकी सप्लाई कर S1 है एंड योर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम डिमांड इज एट पॉइंट 1. नाउ दे हैव सेड देयर आर सम चेंजेस एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज योर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट. फर्स्ट देखना, assume X is which good? X is a normal good. नॉर्मल गुड मतलब क्या, अगर इनकम इंक्रीज होगी डिमांड विल इंक्रीज. अगर वही इंफीरियर गुड होता, इनकम इंक्रीज होती तो डिमांड डिक्रीज होती है. सो होल्डिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, एज्यूम इनकम राइजेस. इनकम इंक्रीज होगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड क्या होगी, प्राइस नहीं चेंज हो रही है, इनकम. सो आप कहां पे शिफ्ट होंगे, D1 टू D2. सो डिमांड, नई डिमांड कर क्या मिल गया आपको, D2. तो पॉसिबिलिटीज आंसर हो सकते हैं 2, 5, 7. अब आगे देखना होगा सप्लाई के रिलेटेड क्या बात कर रहे हैं. सो आंसर, अब नाउ यू विल नॉट बी एनी लाइक नो लॉन्गर ऑन D1, नाउ यू आर इन D2. तो 3 आंसर हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन सप्लाई. अगर सप्लाई डिक्रीज होगा तो आंसर 2 रहेगा, अगर सप्लाई इंक्रीज होगा तो आंसर 7 रहेगा. समझ में आ रहा है? एंड अगर सप्लाई कांस्टेंट रहेगा तो आंसर क्या रहेगा, 5 रहेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आगे क्या लिखा है देखो, एंड प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस. प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर इंक्रीजेस. अगर कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर इंक्रीजेस तो सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज. तो सप्लाई कर्व पे आप कहां पे मूव करोगे, लेफ्ट पे. सो अब नई सप्लाई कर्व क्या मिल गया आपको, आपकी नई सप्लाई कर्व है S3, नई डिमांड कर क्या है, D2. कहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, पॉइंट 2. व्हाट इज द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, इट इज विच आंसर, पॉइंट 2. आर यू गेटिंग माई? अभी समझ लेना, आई विल शेयर दिस शीट एज वेल. ठीक है,
समझ लेना क्या कर रहा हूं खाली. हैव यू गॉट? इसमें क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है और सप्लाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. क्लियर है या नहीं है? नाउ नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. वी आर एनालाइजिंग द मार्केट फॉर गुड जेड. अब गुड एक जेड कमोडिटी है. द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड वाई डिक्लाइंस. जेड का कॉम्प्लीमेंट्री गुड वाई है, उसकी प्राइस डिक्रीज होगी. अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस डिक्रीज होगी तो आपकी डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी. सो नाउ यू विल मूव फ्रॉम डिमांड D1 टू D2. फिर 3 पॉसिबिलिटी हो गए, 2, 5, 7. डिपेंड्स ऑन हाउ सप्लाई रिएक्ट्स. आगे देखो क्या लिखा उन्होंने. एट द सेम टाइम देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांस इन द प्रोडक्शन ऑफ हमारे गुड जेड. सो अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो सप्लाई कर अभी S1 है, अब क्या हो जाएगा S2. सो कहां पे मीट होगा, S2 एंड D2 कहां पे मीट होगा, 7. सो व्हाट इज न्यू इक्विलिब्रियम, 0.7. 0.7. आर यू गेटिंग माई? कैसे सॉल्व करना इन क्वेश्चंस को. हेवी रेन्स इन द महाराष्ट्र. नाउ थर्ड, these are various reasons they have given. एक बार समझ में आ गए तो आप बाद में कभी भूलोगे नहीं. Heavy rains in the Maharashtra during 2005 and 2006 caused havoc in the rice crop. अगर हेवी रेन से सप्लाई इंक्रीज होगा डिक्रीज, हेवी रेन होना चाहिए, आई डू एग्री, बट ज्यादा भी होने से सप्लाई एक्चुअली क्या होगा, डिक्रीज. सो अभी आपकी सप्लाई कर S1 है, अब क्या हो जाएगी S2. मतलब आपके आंसर पॉसिबल 4, 3 या 2. हाउ डिमांड रिएक्ट्स डिपेंड्स. आगे क्या लिखा है देखो. व्हाट इज द न्यू इक्विलिब्रियम. डिमांड तो कांस्टेंट रहेगी ना, या ज्यादा बारिश होने पे आप खाना खाते नहीं है, इससे थोड़ी है. सो डिमांड रिमेन्स सेम, डिमांड कर वही रहेगी. सो व्हाट शुड बी द आंसर, 3. सो आई हैव अज्यूम डिमांड रिमेन्स सेम. सो आंसर इज 0.3. 0.3. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. Assume that consumer expect the prices of new cars to significantly increase in the next year. Suppose हमारी commodity कार है and consumer को लग रहा है कि next year में prices increase होंगे, तो आज क्या करेंगे, वो डिमांड इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज. डिमांड इंक्रीज होगी. D1 टू कहां पे जाओगे, D2. 2, 5, 7. उन्होंने पूछा आज क्या इंपैक्ट होगा. आज डिमांड इंक्रीज होगी, कार विल टेक टाइम टू प्रोड्यूस, सप्लाई इंक्रीज होने में टाइम होगा. तो इंस्टीट्यूट हैज अज्यूम कि सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट इन दिस केस. सो सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट मतलब S2 पे S1 पे हो, तो आंसर उन्होंने लिखा है 5. सो आंसर इज 5. इन शॉर्ट रन यू कैन नॉट चेंज द सप्लाई. समझ में आ रहा है? सो 0.5 इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट, खाली कमोडिटी वगैरह चेंज किया, यू हैव टू प्ले विद दैट बेसिकली. नंबर 5. यस, किसमें किसमें सेकंड में. अरे भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस डिक्रीज होगी तो हमारी डिमांड इंक्रीज होगी. अरे मैडम ऐसे क्या बोल रहे हो तुम लोग. अरे मैडम सपोज कार एंड पेट्रोल के केस में पेट्रोल की प्राइस डिक्रीज होगी तो पीपल विल यूज प्राइवेट कार्स एंड नॉट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो कार की डिमांड इंक्रीज होगी. नहीं समझ में आ रहा है या नहीं, अभी भी नहीं. अरे भाई हाँ, नेक्स्ट 5 minutes देन ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा, ब्रेक. राइट, लेट दिस कंप्लीट, मतलब आगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस कर सकते हैं. होल्ड फॉर 5 minutes प्लीज. सपोज द क्वेश्चन इज, सपोज वेज रेट ऑफ द कोल माइनस इंक्रीजेस. वेज रेट इंक्रीज हो रहा है.
अगर वेज रेट इंक्रीज होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज एंड सप्लाई विल डिक्रीज, सप्लाई डिक्रीज होगा, ठीक है. एंड प्राइस ऑफ नेचुरल गैस विच इज इट सब्सटीट्यूट, कोल एंड नेचुरल गैस आर सब्सटीट्यूट, एंड प्राइस ऑफ द नेचुरल गैस डिक्रीजेस, सब्सटीट्यूट की प्राइस डिक्रीज होने से हमारी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज, सप्लाई भी डिक्रीज होगा, डिमांड भी डिक्रीज होगा. सो यू हैव टू अकॉर्डिंगली पॉइंट देखना होगा, डिमांड डिक्रीज, सप्लाई डिक्रीज, आंसर शुड बी 0.4. आंसर क्या रहेगा 4. देन दिस इज 0.4. आगे, एज्यूम दैट कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है. नॉर्मल गुड होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा, बट अगर इंफीरियर होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा. वाई इज एन इंफीरियर गुड, तो इसकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज. कंसिडरिंग सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, सप्लाई के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं. कंसिडरिंग सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, यू हैव टू राइट द आंसर. समझ में आ रहा है. नेक्स्ट, एज्यूम दैट गवर्नमेंट हैज जस्ट रिमूव 10% एक्साइज ड्यूटी ऑन द गुड्स. एक्साइज ड्यूटी डिक्रीज की है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल डिक्रीज. एक्साइज ड्यूटी इज ऑन प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज. सप्लाई विल इंक्रीज. Which point? They are not talked about price. They are not talked about demand aspect. So we will assume demand remains same, and accordingly हम क्या लिखेंगे, आंसर. एक गवर्नमेंट रिसर्च एजेंसी, सिंपल है, ये गवर्नमेंट रिसर्च एजेंसी हैज पब्लिश्ड आउटकम ऑफ द स्टडीज विच सेज दैट कंजम्पशन ऑफ गुड X could cause कैंसर. अब गवर्नमेंट ने रिसर्च किया कि ये जो कमोडिटी X, इसका कंजम्पशन वुड लीड टू कैंसर, तो इसकी डिमांड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, सो डिमांड विल डिक्रीज. इन एडिशन assume that powerful lobby has persuaded government to give subsidy to manufacture good X. जो मैन्युफैक्चरर्स है उन्होंने गवर्नमेंट को परस्यू किया है एंड गवर्नमेंट विल गिव देम सब्सिडी टू प्रोड्यूस. इससे उनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या होगी, डिक्रीज. सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज. आंसर आपको ऐसे लिखना है. सो डिमांड कर्व पे लेफ्ट पे आओगे एंड सप्लाई कर्व पे राइट पे आओगे, जहां पे मीट होगा दैट शुड बी योर आंसर. खाली रीजन, दीज आर वेरियस रीजंस मैडम, ये मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं. यस, सपोज द मार्केट फॉर 5-star chocolates. So we are talking about 5-star chocolates. You have to tell me whether what is change in the demand and change in supply. The initial equilibrium price, okay, वो तो ठीक है, we know D1 is S1. The new equilibrium if increase in कोई तो ingredient है, right? Ingredient used to manufacture 5-star chocolate. जो ingredient यूज हो रहा है मैन्युफैक्चर करने के लिए वो चॉकलेट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज. सप्लाई क्या होगा, सप्लाई डिक्रीज होगा. डिमांड के बारे में कुछ लिखा नहीं है, सो आई विल अज्यूम डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट. यू हैव टू राइट द आंसर. सपोज 5-star चॉकलेट्स के लिए दे सेड देयर इज अ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ. अब रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे इंटरप्रेट करना है. इकोनॉमिक ग्रोथ विल इंक्रीज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड दैट विल इंक्रीज लेवल ऑफ इनकम. सो इसको मैं बोलूंगा इनकम. हम कैसे ट्रीट करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ को, इनकम के. अगर ग्रोथ होगी तो इनकम विल इंक्रीज, अगर ग्रोथ का रेट लेस रहेगा तो इनकम विल डिक्रीज. अगर इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, इंक्रीज. सो दिस विल इंक्रीज डिमांड. एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो इंपोजेस टैक्सेस, गवर्नमेंट उस पर टैक्सेस लगाएगी तो उनका सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज. सो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंगली. डिमांड विल इंक्रीज, सप्लाई विल डिक्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सेम 5-star चॉकलेट का ही. उन्होंने पूछा है इक्विलिब्रियम इफ हेल्थ स्केयर अबाउट द इफेक्ट ऑफ द 5-star चॉकलेट मे हैव. हेल्थ स्केयर, लोग पीपल आर अफ्रेड टू कंज्यूम इट बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट्स, जो कुछ भी होगा. डिमांड क्या होगी, डिक्रीज. सप्लाई के बारे में कुछ नहीं बोला है, सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट. सप्लाई कर S1 ही रहेगी, डिमांड को लेफ्ट पे आ जाओ, यू विल गेट द आंसर. सेम आगे लिखा है उन्होंने 5-stars आर इंफीरियर गुड. 5-stars आर इंफीरियर गुड एंड द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस इफ देयर इज अ रिसेशन एंड वेजेस ऑफ द वर्कर्स प्रोड्यूसिंग देम विल फॉल. इंफीरियर गुड्स
wages are decreasing of workers producing them decreases. चेक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रही है? डिक्रीज होगी. अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो सप्लाई क्या होगा? इंक्रीज होगा. एंड लोग राइट, ये आपको लिखना है, सप्लाई इंक्रीज होगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से. क्लियर है? जो वर्कर्स है दे विल नॉट कंज्यूम इट. कंज्यूमर्स के इनकम के बारे में कुछ नहीं बोला है. दे आर टॉक्ड अबाउट द वर्कर्स, जो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनके वेजेस डिक्रीज हो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल डिक्रीज, सप्लाई विल इंक्रीज. डिमांड कर D1 ही रहेगी, सप्लाई कर राइट पे जाओगे आप. क्लियर है? नेक्स्ट क्या कंडीशन है? दे हैव सेड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स राइजेस, एट द सेम टाइम देयर इज अ इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन. इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज हो रही है. नाउ दिस इज नो लॉन्गर इंफ्रारेड गुड्स, वहां पे इंफ्रारेड बोला नहीं है. इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी? इंक्रीज. एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, इफिशियंसी इंक्रीज हो रही तो सप्लाई क्या होगा? इंक्रीज. यू हैव टू राइट, दोनों राइट में शिफ्ट कर दो. द न्यू इक्विलिब्रियम आपको जो मिलेगा वो आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा. दिस इज अबाउट पर्क चॉकलेट्स. नाउ दे हैव चेंज्ड. नाउ सपोज वी आर डीलिंग इन पर्क कमोडिटी. The new equilibrium if there is an increase in the prices of dairy milk. Perk and dairy milk are substitutes. Substitute की प्राइस इंक्रीज होने से पर्क, जो पर्क हमारी कमोडिटी है नाउ, उसके डिमांड क्या होगा? इंक्रीज. सप्लाई के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं. सो डिमांड कर्व कहां पे जाओगे? राइट पे. सप्लाई कर्व रिमेन्स सेम. यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर. लास्ट 3 क्वेश्चंस. In case of Perk chocolates, the initial equilibrium is at point D1, वो ठीक है. If rapid growth of economic growth, मतलब income, there is increase in income which increases demand, but cost of labor also increases. लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज होगी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, सप्लाई क्या होगा? डिक्रीज होगा. डिमांड का राइट में आ जाओ एंड सप्लाई कर लेफ्ट पे आ जाओ. जहां पे इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी द आंसर. अगेन फॉर द मार्केट ऑफ पर्क, एज्यूमिंग देयर न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोड्यूसिंग पर्क, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, सप्लाई विल इंक्रीज. डिमांड के बारे में कुछ बोला नहीं, डिमांड कर वही रखनी है, सप्लाई कर राइट पे आना है. एंड द लास्ट वन, देयर इज अ इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ पर्क चॉकलेट, मतलब सप्लाई विल इंक्रीज, एंड एट द सेम टाइम 5 स्टार चॉकलेट्स की प्राइस डिक्रीज हो रही है. पर का कॉम्पिटिटर है 5 स्टार, उनकी प्राइस डिक्रीज होने से हमारा डिमांड क्या होगा? डिक्रीज. सप्लाई कर राइट पे जाओ, डिमांड कर लेफ्ट पे आओ, जहां पे इंटरसेक्शन होगा दैट शुड बी योर आंसर. आर यू गेटिंग? सो दिस इज ऑल अबाउट changes in demand and changes in supply, maybe one at a point or simultaneous changes. Clear? So we will take 5 minutes break. 7:10 हुआ है, we will start at 7:15. Come in time. आंसर 4 कैसे है? 4 कैसे है? The following is the marginal cost schedule. Find the average cost of production of the 4 units. क्या पूछा है? Average cost ना? हाँ. 4 units. 11, 15, 20. 20 divided by 4. 5. 5 आना चाहिए. 20 divided by 4. 5 आना चाहिए. 5 आना चाहिए. एक सेकेंड. कौन सा आंसर? क्वेश्चन नंबर 80. क्वेश्चन नंबर 80. फाइव. सर याच्यातला जो क्वेश्चन केलेला आत्ताचा हां. तो बघून ऐका. 12 क्वेश्चन 12. 5 स्टार चॉकलेट्स आहे बरोबर. हां, मग त्याच्यामध्ये ते काय म्हणले की आपली कॉस्ट कमी झाली, म्हणजे ते वेजेस आपण नाही दिले, मग सप्लाय वाढणार कसं
नाही नाही इन्फिरियर गुड्स आहेत, गुड्स इन्फिरियर आहेत, पण वर्करचे वेजेस कमी झालेत ना, म्हणजे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल डिक्रीज. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज झालं म्हणजे सप्लाय विल इन्क्रीज.
there are two behavioral principles that one must understand to find out what is my equilibrium quantity. First principle, first behavioral principle, the firm should continue to produce, should continue to produce as long as it is recovering its average variable cost. और वेरिएबल कॉस्ट, अगर आप टोटल रेवेन्यू की बात कर रहे हो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू की बात करोगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. इट मींस देयरफॉर आई कैन से इफ माय टोटल रेवेन्यू इज मोर देन और इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और if I divide both the side by output, I will say my average revenue is more than equal to my average variable cost. I will continue to produce. That is, therefore, if my total revenue is less than total variable cost, or average revenue is less than my average variable cost, I will stop, और इसको हम बोलेंगे shut down in short run. Shut down in short run. Wait till the price increases. Clear है? Then, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया. एटलीस्ट यू शुड बी इन पोजिशन टू रिकवर योर वेरिएबल कॉस्ट. शॉर्ट रन में वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होना इंपॉर्टेंट है, फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी इंकर हो चुकी है. सेकंड बिहेवियरल प्रिंसिपल, सो ये जो फर्स्ट बिहेवियरल प्रिंसिपल है किसका आंसर देता है? शुड आई प्रोड्यूस और नॉट. एक बार डिसाइड हो गया कि प्रोड्यूस करना है, फिर क्वेश्चन आता है कितना प्रोड्यूस करना है. So I am talking about how much should I produce. I should produce that quantity. आप बोलोगे सर जहां पे कॉस्ट मिनिमम रहे. अरे कॉस्ट मिनिमम होगा तो नो वन कैन गारंटी कि प्रॉफिट मैक्सिमम होगा. सो व्हाट शुड बी योर आंसर एक्चुअली? सर उतना प्रोड्यूस करना चाहिए जहां पे प्रॉफिट क्या रहे? मैक्सिमम रहे. सो वो वाला आउटपुट जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम रहता है, हम उस आउटपुट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट. So the second question is, how much should I produce? I should produce that much quantity where my marginal cost is equal to marginal revenue. Therefore, the second is marginal, right? Marginal revenue is greater than marginal cost. In additional revenue is more than additional cost. Continue to produce. There is an incentive कि चलो प्रोड्यूस करेंगे. There is an incentive कि हम क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे. क्लियर है? Because additional unit will contribute more to your profit. समझ में आ रहा है? Marginal revenue is equal to marginal cost. Additional revenue will not either contribute or decrease your profit. This is your equilibrium. There is no incentive basically. यहां पे आप बोलोगे ना ही इंक्रीज करना है ना ही डिक्रीज करना है. This is your equilibrium. This is your equilibrium output, which is giving you either maximum profit or minimum loss. Third, if marginal revenue is less than marginal cost, as you increase output, your marginal cost is bound to increase. बराबर? Decrease, minimum, increase. बराबर? So
Now you know where your marginal revenue is less and marginal cost is more. Now you should decrease output. तो आउटपुट डिक्रीज करके मार्जिनल कॉस्ट नीचे लेके आ जाओ सो दैट इट विल मैच योर मार्जिनल रेवेन्यू. तो यहां पे आपको क्या करना होगा? डिक्रीज आउटपुट. आउटपुट. सो इसकी एक मैं कर्व निकालता हूं. लेट्स सी. यू हैव टू आंसर मी. This is my marginal revenue curve. This is my marginal cost curve. I have to produce, suppose these are various levels of output. This is one OQ, this is second, so this is OQ1, this is OQ2, OQ3, OQ4 and OQ5. Clear है? If output is OQ1 output पे, बोलो OQ1 output पे, what is your marginal cost? Marginal cost is this much. बराबर ना? ये वाला पोर्शन मार्जिनल कॉस्ट है. बिलो मार्जिनल कॉस्ट चेक करो. एंड व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? मार्जिनल रेवेन्यू इज मोर ना? मीन्स योर मार्जिनल रेवेन्यू इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट. कंटिन्यू आउटपुट. सो आगे चलो. कंटिन्यू टू प्रोड्यूस. सो ओक्यू के आगे जाना चाहिए आपने. टू प्रोड्यूस. इवन सेम फॉर OQ2. Answer is same. Same for OQ3. बराबर. सेम फॉर OQ3. चेक करो ना. OQ2 पे इतनी मार्जिनल कॉस्ट है नीचे और इतना मार्जिनल रेवेन्यू है. सो रेवेन्यू इज मोर देन कॉस्ट स्टिल. इवन OQ3 पे. नाउ OQ4. बोलो OQ4 पे मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या है? इक्वल है. अभी तक OQ1 पे बोले आगे जाओ, OQ2 पे बोलो आगे जाओ, OQ3 पे बोलो आगे जाओ, OQ4 पे यू शुड स्टॉप. दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. समझ में आ रहा है? इफ यू आर प्रोड्यूसिंग OQ आउटपुट पे देखो. दिस इज योर रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू, एंड दिस इज योर एडिशनल कॉस्ट. यहां पे मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन marginal revenue. आप you should not go for OQ5. Actually you should curtail down the production. आप कहां पे आना चाहिए? OQ4 पे. So I will say reduce the output. Decrease the level of output. Clear? So this is the principle. Another thing, इसमें एक कंडीशन अप्लाइड है. व्हाट इज द कंडीशन अप्लाइड? हिडन कंडीशन. मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड इंटरसेक्ट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो. लाइक ये यहां पे जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो नीचे से हो रहा है. इसका मतलब दैट इज मार्जिनल cost curve should have which slope? Increase हो रहा है ना? Must have positive slope. That is at intersection point marginal cost curve should have which slope? Positive slope. ये आपकी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है एग्जांपल के लिए, एंड ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट कर्व है. सपोज ऐसे समझने के लिए. तो आप बोलोगे सर यहां पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, यहां पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है. सर ये भी आउटपुट चल सकता है, ये भी आउटपुट चल सकता है. बट चेक करो ये वाले आउटपुट पे यू नो इफ यू इंक्रीज आउटपुट, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है.
दिस इज पॉसिबल कि OQ1 पे आप रुक सकते हो, बोले सर दोनों इक्वल है, यहां पे रुको. बट इफ यू इंक्रीज आउटपुट, योर मार्जिनल कॉस्ट इज गोना डिक्रीज, देन मार्जिनल रेवेन्यू एक्चुअली प्रॉफिट होगा अगर आप आगे आओगे तो. इसलिए यहां पे मत रुको. यहां पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट कर रही है, बट कैसे? इट इज डिक्रीजिंग. सो मार्जिनल कॉस्ट कर्व का यहां पे निगेटिव स्लोप है. मैंने बोला पॉजिटिव स्लोप जहां पे होगा वो इंटरसेक्शन चाहिए. सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे. सो ये वाला OQ2 आउटपुट है. इसके आगे अगर आप जाओगे, यू कैन फाइंड मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन मार्जिनल रेवेन्यू. इसके आगे आओगे तो यू विल फाइंड, कोई भी आउटपुट ले लो, मार्जिनल रेवेन्यू इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट. सो यही मैं बात कर रहा हूं. दो जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है. एक जगह पे मार्जिनल कॉस्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग है, दूसरी जगह पे मार्जिनल कॉस्ट अपवर्ड स्लोपिंग है. तो आपका आउटपुट कौन सा लेना है? जहां पे मार्जिनल कॉस्ट अपवर्ड स्लोपिंग है. क्लियर है? सो इसलिए मैंने बोला टर्म्स एंड कंडीशंस इज राइट. मार्जिनल कॉस्ट कर्व एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शुड हैव विच स्लोप? पॉजिटिव स्लोप. क्लियर है? अब इस फर्स्ट बिहेवियरल प्रिंसिपल को थोड़ा आगे लेके चलते. मैंने बोला कि एज लॉन्ग एज योर एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का हमें समझना है. बिकॉज मेनी MCQs दे आस्क. फर्स्ट, व्हाट कैन बी केसेस? 3 प्रोबेबिलिटीज पॉसिबल है. फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, लेस देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ये हो सकता है. और दूसरा, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. इसमें सोचना ही नहीं है. अगर यू कैनॉट रिकवर योर वेरिएबल कॉस्ट, यू शुड स्टॉप द प्रोडक्शन, शट डाउन, मे बी टेम्पररीली, शॉर्ट रन में टेम्पररीली शट डाउन फॉर टाइम बीइंग, एंड इसमें योर लॉस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट. इसमें लॉस क्या रहेगा? फिक्स कॉस्ट रहेगा. क्लियर है? नाउ as long as you are recovering your variable cost, you should continue to produce. Continue to produce. Next, इसमें अलग अलग केसेस देखना. Now I will compare my average revenue with average cost. What is my average cost? It is average variable plus average fixed. अब इसमें आप एवरेज रेवेन्यू तो रिकवर कर रहे हो, बराबर. व्हाट अबाउट एवरेज कॉस्ट? इफ योर एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है एंड एवरेज टोटल कॉस्ट से भी ज्यादा है. आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर कर रहे हो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर कर रहे हो एंड उससे ज्यादा कमा रहे हो. इसका मतलब ये दोनों में डिफरेंस है. ये एवरेज कॉस्ट है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है. पहले क्वेश्चन पूछो, शुड आई प्रोड्यूस और नॉट, उसके लिए एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. अगर कोई बोलता है प्रॉफिट है या लॉस है, तो आपको कंपेयर करना होता है एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट. नाउ यू आर रिकवरिंग योर एवरेज कॉस्ट. आप वेरिएबल प्लस फिक्स रिकवर कर रहे हो. समझ में आ रहा है? सो आई विल से राइट, यू हैव रिकवर्ड बोथ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, एंड ये जो प्रॉफिट रहेगा हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट. आप क्या कमा रहे हो? पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट. वो वाले आउटपुट पे योर एवरेज रेवेन्यू कर्व इज अबोव योर एवरेज कॉस्ट कर्व. डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है, मैं खाली समझाने के लिए निकाल रहा हूं. This is your average revenue curve. This is your average cost curve. And आपका आउटपुट सपोज ये है, ये आपका आउटपुट है OQ. एवरेज कॉस्ट इतनी है. दिस इज योर एवरेज कॉस्ट. एवरेज रेवेन्यू, रेवेन्यू कर्व से नीचे आ जाओ, इतनी आपकी क्या है? एवरेज रेवेन्यू है. सो योर प्रॉफिट इज दिस मच. समझ में आ रहा है? सो ये बोल रहा हूं. सो average revenue is more than average cost. At a given output, average revenue is at this output
average revenue curve is above average cost curve. You are earning super normal profit, positive economic profit, और normally लोग बोलते हैं abnormal profit. Now, second case क्या हो सकती है? सर दोनों इक्वल होंगे तो क्या? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट. मीन्स आप वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहे हो प्लस फिक्स कॉस्ट भी रिकवर कर रहे हो, बट उससे आगे कुछ नहीं मिल रहा है आपको. सो इसमें you have recovered both fixed cost and variable cost. However, there are zero economic profit. आप खाली दो चीजें रिकवर कर पाए हो, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिला है. जीरो. इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट. इसको हम बोलते हैं, पहले वाले को हम बोल रहे थे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इसमें हम बोल रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट. अगर कोई मुझे डायग्राम बोलेगा तो मैं डायग्राम ऐसे निकालूंगा. दोनों इक्वल होने चाहिए ना. This is my average cost curve. This is my average cost curve. This is my average revenue curve. और मैं ये वाले आउटपुट की बात कर रहा हूं. ये वाले आउटपुट की बात कर रहा हूं. At this output, my average revenue is this much, and my average cost is also same. Revenue is equal to cost. दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे. So at OQ, मतलब दोनों इक्वल है, मतलब वहां पे दोनों स्क्वायर क्या करेंगे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या टेंजेंट करेंगे, जो बोलना है बोलो. वो दोनों वहां पे इक्वल होने चाहिए. आप ये वाले आउटपुट पे नहीं बोल सकते. अगर आपको मुझे बोलता है OQ1, तो मैं बोलूंगा भाई कॉस्ट तो इतनी है और रेवेन्यू इतना है, तो ये प्रॉफिट वाला हो गया. बट OQ जहां पे कॉस्ट एंड प्रॉफिट इक्वल है. आर यू गेटिंग? मैं कर समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है? थर्ड क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज का. अब एवरेज वेरिएबल से ज्यादा है बट एवरेज कॉस्ट से कम है. वेरिएबल रिकवर हो रहा है बट पूरा का पूरा फिक्स रिकवर नहीं हो रहा है. सम ऑफ द फिक्स कॉस्ट इज गेटिंग रिकवर्ड. सो मैंने इसको कंटिन्यू किया. यू कैन सी एवरेज वेरिएबल से ज्यादा है बट लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट. इसमें यू आर रिकवरिंग, you have recovered variable cost, you have recovered variable cost and sum of fixed cost. पूरी कॉस्ट रिकवर नहीं हुई, मीन्स यू आर इनटू लॉस. सो ये रहेगा निगेटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं लॉस. मतलब इसमें एट दैट आउटपुट योर एवरेज कॉस्ट इज अबोव द एवरेज रेवेन्यू. सो अगर कोई मुझे डायग्राम बोलेगा तो मैं डायग्राम ऐसे निकालूंगा. पहले दिस इज माई एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड, दिस इज माई एवरेज रेवेन्यू कर्व. वो वाला आउटपुट चाहिए जहां पे मेरी एवरेज कॉस्ट क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए. तो आई विल टेक दिस आउटपुट. सपोज OQ इज द आउटपुट, कॉस्ट इतनी है, कॉस्ट के नीचे आ जाओ, एंड रेवेन्यू इतना है. समझ में आ रहा है? सो दिस मच इज माई लॉस, मल्टीप्लाई बाय आउटपुट, आई विल गेट लॉस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हाँ, ये आउटपुट कैसे निकालना है वो अलग बात है, बट एक बार आउटपुट डिसाइड हुआ तो फिर प्रॉफिट निकाल सकते हो. यस, समझ में आ रहा है? सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द थिंग. सो माई क्वेश्चन, लिख लेना क्वेश्चन. This is my average cost. This is my average This is my average revenue. अगर आप एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू देख रहे हो मतलब आप प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हो. अगर आप मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू देख रहे हो मतलब आप आउटपुट फाइंड आउट कर रहे हो. दिस इज माई लेवल ऑफ आउटपुट, दीज आर माई प्राइजेस, मतलब रुपीज. दैट कैन बी प्राइस, दैट कैन बी per unit. Yeah, per unit cost, per unit price. Average revenue talks about per unit price and average cost talks about per unit cost. One level of output is OQ1, second output is OQ2, third level of output is OQ3. आपको मुझे बोलना है
तीनों अलग अलग आउटपुट है, OQ1 आउटपुट पे क्या पोजीशन है? OQ आउटपुट पे क्या पोजीशन है? प्रॉफिट है या लॉस है? माय कॉस्ट, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। क्लियर है? इसको मैं ए डैश बोल रहा हूं, इसको मैं सी डैश बोल रहा हूं समझने के लिए। सो मैंने पहले डायग्राम लिख लेना। क्या डायग्राम है? Economics can be interesting if you start understanding diagrams and concept. I never understood. मुझे सीपीटी में सीए होने के बाद मुझे स्टैटिस्टिक्स ज्यादा इकोनॉमिक्स में समझ में आने लगा। स्लोप क्या होता है, क्या होता है। जब मैं इकोनॉमिक्स सिखाने स्टार्ट कर दिया तब समझ में आ गया उसका इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब पूरा सीए होने तक मुझे उसका इंपॉर्टेंस तब तक नहीं समझ में आया था। जब तक कोई चीज आप उस पर काम नहीं करते। नहीं, कॉस्टिंग इंटर में कॉस्टिंग है, पता है ना आपको। आई पास 40 मार्क्स थे मुझे इंटर में कॉस्टिंग में 40 एंड फाइनल में 45। देखो कंपैरिजन बोल रहा हूं। आई वॉज यूनिवर्सिटी टॉपर इन कॉस्टिंग। आई एम ए बीएमसीसी पास आउट, और वही जो यूनिवर्सिटी टॉपर है वो सीए में 40 मार्क्स पे पास हुआ था उसी सब्जेक्ट में। यू कैन सी द कंपैरिजन। बाकी हर सब्जेक्ट में मुझे एग्जाम्शन था, खाली ये छोड़ के कॉस्टिंग। पागल है। सो मैं आगे जाके व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विथ एक्सेंचर मुझे कॉस्टिंग का एरिया मिल गया, कॉस्ट मैनेजमेंट का। एंड देन एक्चुअली आई अंडरस्टूड को जितना मैं उसको डिफिकल्ट समझता था वो एक्चुअल में उतना डिफिकल्ट था नहीं। सीपीटी को जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तब मुझे समझ में आ गया कि मुझे तब कुछ नहीं समझ में आ रहा था जब मैं स्टूडेंट था। ये रियलिटी है। OQ1 आउटपुट पे आपको मुझे बोलना है व्हाट इज माय एवरेज रेवेन्यू एंड व्हाट इज माय एवरेज कॉस्ट। OQ1 आउटपुट पे व्हाट इज माय एवरेज रेवेन्यू। अगर एवरेज रेवेन्यू चाहिए तो आपको रेवेन्यू कर्व से नीचे देखना है। सो व्हाट इज माय एवरेज रेवेन्यू, A-Q1 बराबर, लेंथ इज A-Q1 एंड व्हाट इज माय एवरेज कॉस्ट। कॉस्ट कर्व से नीचे देखो AQ1। सो मुझे बोलो विच इज ग्रेटर, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। मतलब आप यहां पे क्या कर रहे हो, प्रॉफिट। यू आर अर्निंग पॉजिटिव प्रॉफिट विच इज इक्वल टू, कोई मुझे बोलेगा व्हाट इज द प्रॉफिट पर यूनिट। लेंथ बोल सकता है मुझे, व्हाट इज प्रॉफिट पर यूनिट। कॉस्ट रेवेन्यू इज A-Q1, कॉस्ट उसमें से है AQ1। सो डिफरेंस बिटवीन दैट व्हाट इज माय प्रॉफिट पर यूनिट, A-A is profit per unit. A-A is profit per unit. And अगर कोई मुझे बोलता है what is total profit, in that case I have to multiply by what, quantity. ये मेरा एरिया प्रॉफिट रहेगा। ये मैं निकाल नहीं रहा हूं, बाद में डिलीट कर दूंगा समझने के लिए खाली। सो एक बार आपको प्रॉफिट पर यूनिट पता चल गया, मल्टीप्लाई बाय OQ1, length of OQ1, you will get total profit. Now at OQ2, what is my average revenue and what is my average cost? बोलो। OQ2 आउटपुट पे average revenue is BQ2, even average cost is also BQ2. You can see they are intersected here. बराबर, क्लियर है? They are equal. बराबर। सो जितनी कॉस्ट है पर यूनिट उतना रेवेन्यू पर यूनिट है। सो यहां पे प्रॉफिट है बट को क्या है, जीरो। प्रॉफिट इज जीरो। सो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है? जीरो प्रॉफिट है। देन
OQ3. What is my average revenue and what is my average cost? OQ3 पे देखो, ये वाली लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ की है. मुझे रेवेन्यू चाहिए, मुझे रेवेन्यू से नीचे देखना होगा. व्हाट इज माय एवरेज रेवेन्यू? C dash Q3, लेंथ ऑफ C dash Q3, बराबर. व्हाट इज माय एवरेज कॉस्ट? CQ3. CQ3. My average revenue is less than average cost. I am suffering losses. And what is my loss? कोई मुझे बोलेगा what is my loss? ये वाला C dash. Loss per unit multiply by OQ3 multiply by करोगे, quantity से multiply by करोगे, you will get total loss. So OQ1 पे at OQ1 output my average revenue curve was above average cost curve. I was earning profit. At OQ2 output my average revenue curve and average cost curve was same, intersect हो रहे थे. I was earning zero profit. And OQ3 output my average revenue curve was below my average cost curve. समझ में आ रहा है? So I am suffering losses. हाँ, इक्विलिब्रियम आउटपुट के लिए मुझे यहां पे एक दो कर्व्स लाने होंगे. कौन से? अगर कोई मुझे बोलता है इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा था. ये मुझे इक्विलिब्रियम आउटपुट नहीं देगा. ये दोनों कर्व मुझे कौन से कर्व्स इक्विलिब्रियम आउटपुट देंगे? MR एंड NC. तो वो कुछ तो अलग रहेंगे. एंड वो वाला आउटपुट एक बार आपको पता चल गया तो कैन यू फाइंड आउट कॉस्ट एंड रेवेन्यू? यस. समझ में आ रहा है? सो राइट, ये दोनों प्रिंसिपल्स विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, देन वी विल स्टॉप. लास्ट एग्जाम्पल, देन वी विल स्टॉप. लास्ट एग्जाम्पल, वी विल स्टॉप. मैं बोल रहा हूं एग्जाम्पल, प्लीज. My total fixed cost is 10 lakhs. My total variable cost is 5 lakhs. Therefore, my total cost is equal to 15 lakhs. ठीक है? Case 1. My total revenue is 4 lakhs. My total revenue is 4 lakhs. Should I continue to produce or not? My average revenue or total revenue is less than total variable cost. Option 1, produce. And option 2, do not produce. Check करो answer. Produce and do not produce. My profit, total profit is equal to total revenue minus total cost. If I produce, my revenue is 4 lakhs minus total cost is 15 lakhs. My total loss is equal to how much? 11 lakhs. Negative. बराबर? Bracket stands for negative. If I do not produce, my total profit कितना होगा? देखो, revenue तो zero होगा. If I do not produce anything, my total revenue is 0. If I do not produce, even my variable cost will also be 0. What is my total cost in that case? Total fixed cost, which is 10 lakhs plus 0. If I do not produce, total revenue is also 0, variable cost is also 0. So in that case, 0 minus 10. What is my loss? My 10 lakhs is loss. So which loss is minimum? So which option should I go for? Option 2, I should not produce. So in this case 1, so can I say as my average revenue or my total revenue is less than my average variable cost or my total variable cost, I will not produce. And my total loss and total loss is fixed cost. Are you getting my point or not?
वही तो लिखा इधर. If average revenue is less than average variable cost, I should not produce. My total loss is equal to fixed cost. Clear है? Second, case 2. It's जिनको निकालना है they may leave. कोई प्रॉब्लम नहीं. Case 2. If total revenue is 8 lakhs. Or suppose total revenue is 5 lakhs. Option 1 and option 2. Option 1 stands for continue. Option 2 stands for discontinue. My total profit in that case, total profit, my revenue is 5 lakhs. If I continue to produce, minus my cost 15 lakhs, variable plus fixed, my total loss is equal to 10 lakhs. If I do not produce, my revenue will be 0, my cost will be equal to only fixed cost, which is 10 lakhs. My loss will be 10 lakhs. So, when my revenue is equal to my variable cost, there is an option whether produce or do not produce, कोई फर्क नहीं पड़ता. But if you establish everything, तो then produce. So go for production. So I will produce. Even if I don't produce, my loss is 10 lakhs. And even if I produce, my loss is 10 lakhs. So I should at least use the resources जो भी मैंने employed किए हैं. Case 3. If total revenue is 7 lakhs. Option 1, option 2. Option 1, option 2. My total profit. 7 lakhs is my revenue. Minus my cost is 15 lakhs. So what is my loss? 8 lakhs is my loss. बराबर? If I do not produce, my total profit, revenue will be 0. And if I do not produce, my cost is always fixed cost, 10 lakhs. So what is my loss? Minus 10 lakhs. Here I am recovering my variable cost, 5 lakhs variable cost and revenue is 7 lakhs. मैं एक्स्ट्रा कितना कमा रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट से? 2 lakhs. That 2 lakhs extra earned is used, right, to save my fixed cost. मेरा लॉस, if I don't produce, my loss 10 lakhs है. But if I produce, my loss is 8 lakhs. So which is better? Negative 8 lakhs or negative 10 lakhs? Negative 8 lakhs. So I should continue to produce. So वही मैं यहाँ पे लिखा था मैंने. देखो, if you are in position to recover your variable cost and but you cannot recover your total cost, you should produce, right, your negative profit, your recovered variable cost and sum of the fixed cost. Case 4. If total revenue is equal to 15 lakhs, मैंने पहले टोटल रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से कम रखा, फिर वेरिएबल कॉस्ट इतना रख दिया, वेरिएबल कॉस्ट से आगे रख दिया. ऑब्वियसली एज लॉन्ग एज आई एम रिकवरिंग वेरिएबल कॉस्ट आई विल कंटिन्यू. ऑप्शन 1 सेज, देखो ऑप्शन 1 में क्या आ रहा है, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू 15 lakhs माइनस टोटल कॉस्ट 15 lakhs, 0. ऑप्शन 2, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू 0 रहेगा, कॉस्ट 10 lakhs रहेगी, obviously. So in this case my profit is 0, means I am recovering both variable cost as well as fixed cost. And the last, if 17 lakhs, case 4, if total revenue is 17 lakhs, case 5, क्या फर्क पड़ता है? Option 1, option 2. Obviously I will never go for option 2 because मैंने वेरिएबल कॉस्ट रिकवर किए ना, ऑप्शन 2 का सोचो ही मत. So what is my profit? Total profit is equal to 17 lakhs minus 15 lakhs, 2 lakhs. So my revenue is more than my cost. I am recovering variable plus fixed
and beyond that 2 lakhs is my positive economic profit. These are various cases. Are you getting? So घर पे ये दोनों प्रिंसिपल एक बार पढ़ के आ जाओ. Tomorrow I will be taking equilibrium under 2 markets. First session में under perfect competitive market and second under monopoly market. Clear? Done? Thanks.